हे गुरु साहिब जीओ। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बांगहि की लाज अस गोबिंद दास तुहार। बांगहि की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सतनाम जी वाहिगुरु साहिब जीओ। राग आसा महला पहला। छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेश अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए। सो घर राख वडाई तोय रहाओ। विसोए चसियां घड़ियां पहरा। थिथी वारी मां हुआ। सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेश। विसोए चसियां घड़ियां पहरा। थिथी वारी मां हुआ। सूरज एको रुत अनेक। नानक करते के केते वेश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्त दे मालक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अपार बख्शिश का आनंद माणन दे लई गुरु चरनां विच पहुंचे गुरु प्यारे सतसंगी जनों। पावन बानी सोहिला साहिब विचार असी जो आरंभ की है, धन गुरु नानक साहिब पातशाह दे वल्लों उचारण आसा राग दे इस पावन शब्द का पाठ आपने सरवण किया। सिख जदों भी रात नूं सौण लगदा है, उस तो पहला ये पावन बाणी का पाठ करता है। गुरु ने साडी जिंदगी नूं इदां गुरमुखों मर्यादित किया कि सहज सुभाअ ही सानू परमेश्वर का नाम चित आवे। एक हुंदा है नाम चेते करना, एक हुंदा भी अपने आप सहज सुभाअ चेते आउंदे रहना, जिसनों असी कहने हैं मेरी आदत बन गई है। तो गुरु साहब ने साडे उपर एक कृपा की कि नाम जपना बंदगी करनी एक सिख का कर्म ना रह जाए, ये सिख का सुभाअ बन जाए। ये नुकता बड़े ध्यान ना समझो।
ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਇਕੱਲਾ ਕਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਥ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਭਾਵ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਵੇਂ। ਤੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸੌਣਾ ਵੀ, ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਦਾਤ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 2 ਪਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਕਰੋ, ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਧੁਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸੋਏ ਚੱਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿੱਥੀ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੋ ਆਓ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ 6 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ 6 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਘਰ ਨੇ 6 ਗੁਰ। ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ।
छे घर का अर्थ है छे शास्त्र, छे गुर का अर्थ है छे गुरु ने उन्होंने शास्त्रां नूं घरां नूं बनाउण वाले। छे घर छे शास्त्र ने सनातन मत दे, छे उन्होंने बनाउण वाले उन्हां दे गुरु ने, छे गुर ते छे उपदेश ते छे ही फिर उन्हां शास्त्रां दे उन्हां गुरुआं द्वारा उचारण कीते हुए सिद्धांत ने। छे सिक्ख्या कह लो भी, छे सिक्ख्यावां ने। सनातन मत की फिलोसफी के अनुसार इस संसार दे विच उस रचनकार दी रचना दे विचों जिहड़े ऋषि पैदा होए छे, उन्होंने छे घर छे शास्त्र पैदा किए, उन्होंने छे गुरु बनाउण वाले करता ऋषि हैं और छे ही उन्हां दीयां सिक्ख्यावां ने, उन्हां दे दर्शन सिद्धांत ने छे। हुण गुरमुखो छे गुरु किहड़े ने? छे घर, पहला छे घर, छे घर ने जिहड़े शाख, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा ते वेदांत, ये छे घर ने। इन्हां विचों आम तौर पर लोग वेदांत बहुत ज़्यादा पढ़ते, आप कहने ये बंदा वेदांती है। साडे जथेदार साहब होए ने अकाल तख्त साहिब दे, उन्हां दे नाल वेदांती लगदा सी, वेदांती जोगिंदर सिंह जी वेदांती सी नाम उन्हां दा। वो कहंदे सी वेदांत पढ़े हुए ने। छे शास्त्रां दे विचों एक शास्त्र का नाम है वेदांत। तो छे जिहड़े शास्त्र ने ये सनातन मत का मूल कह लो। छे उन्हां दे गुरु ने अगे जाके कपिल मुनि, गौतम मुनि, कनक मुनि, पतंजलि, जिहड़ा बाबा रामदेव वाला पतंजलि है, ये एक छे शास्त्रां विचों एक शास्त्र ही है, उहदा रचनकार है पतंजलि ऋषि सी। एक जैमिनी है, जैमिनी ऋषि, एक व्यास ऋषि है। व्यास ये बहुत प्रसिद्ध है, नाम इहदा व्यास ऋषि का। ये छे शास्त्र ने, ये छे इन्हां दे ऋषि ने, इन्हां नूं बनाउण वाले रचनकार ने। छे उपदेश ते छे इन्हां दे उपदेश हन, छे इन्हां दीयां सिक्ख्यावां हन। पर गुरु नानक साहब सतगुरु पातशाह कहंदे गुर गुर एको वेस अनेक। ये भाई भावें छे शास्त्र ने, छे इन्हां नूं बनाउण वाले ने, इन्हां दे सिद्धांत छे ने, सिक्ख्यावां छे ने। पर गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे आरंभ तां केवल उस एक परमेश्वर तो है। इन्हां छे शास्त्रां नूं बनाउण वाला, इन्हां दे छे शास्त्रां दे रचनकारियां नूं बनाउण वाला ते इन्हां सिक्ख्यावां नूं ज्ञान दे सिक्ख्या, इन्हां दा ज्ञान देण वाला जिहड़ा वो परमेश्वर है, वो एक है, वो छे नहीं है। ये भावें छे ही ने, पर इन्हां दा करता जिहड़ा है, ये कह लो भी छे ऋषि बनाए, उन्हां ऋषियां ने छे शास्त्र पैदा किए, उन्हां छे शास्त्रां ने छे सिक्ख्यावां दित्तियां दुनिया नूं। पर इन्हां सारियां दा करता केवल एक परमेश्वर वाहिगुरु आप ही है। गुर गुर एको वेस अनेक, ये तां सारे उहदे वेस ने। असी जिन्ने गुरमुखों बैठे हाँ, असी परमात्मा दे वेस ही तां हाँ। जिवें एक थां भट्ट साहिबान जदों गुरु साहिबानां दी गल करदे आ, भट्ट साहिबान कहंदे जोत जोत ओहा, भट्ट साहिबान ही अपने भाई सत्ता भाई बलवंड जी, जोत ओहा जुगत छाए शह काया फेर पलटी है। भाई सत्ता भाई बलवंड जी उचारण करते हैं, कहते दुनिया के लोगों तुसी ये ना समझो भी गुरु नानक साहब होर ने, गुरु अंगद साहब होर ने, गुरु अमरदास साहब होर ने, गुरु रामदास साहब होर ने। नहीं नहीं नहीं, ये तो वेस है। गुरु एक ही है, ये तो वख वख शरीर ने। जोत ओहा, जोत ओही है एक परमेश्वर की। जिहड़ी जोत गुरु नानक साहब दे विच सी, ओही जोत गुरु अंगद साहब दे विच है, ओही गुरु अमरदास साहब दे विच है। जोत ओहा जुगत साई, जुगती भी उही है, विधि भी उही है, शकाया फिर पलटी है। ये तो शरीर पलटे जा रहे ने, शरीर ही बदले जा रहे हैं। इसे नूं भाई गुरदास साहब ने कहा
पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। गुरु अर्जन साहब ने काया ही ते पलटी है तो उही ने। इसे तरह के नाल ही गुरु अर्जन साहब पातशाह कहते जल थल महील पूरिया स्वामी सिरजनहार अनेक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। जल दे विच भी है वो थल दे विच भी है वो आकाश दे विच भी है वो सारे थावां ते पसरिया होया है। ये तां उहदे वेस ने थां थां दे उत्ते पसरे होए ने पर असल दे विच वो परमात्मा थोड़ा ये है भी वो इत्थे जल दे विच कोई होर परमात्मा है थल दे विच कोई होर परमात्मा है आकाश विच कोई होर रब बैठा है नहीं नहीं उहदे सारे थावां ते उहदी जोत ही चलदी पई है। जिवें गुरमुखों आपां सौखा समझ लो गुरगर एको वेस अनेक। जिवें आपां कहने भी धरती दे आले दुआले सूरज दे आले दुआले 12 ग्रह घूमदे ने कहने हैं ना धरती सूरज दे आले दुआले 12 ग्रह घूमदे ने। उन्हां 12 ग्रहां दे विचों एक ग्रह धरती भी है वो भी सूरज दे आले दुआले घूमदी पई है। हुण सूरज दीयां किरणां ने जिहड़ियां वो धरती उपर भी पै रहीआं ने मंगल ग्रह ते भी पै रहीआं ने बनस्पति जिहड़ी बृहस्पति आ उहदे उपर भी पै रहीआं ने शनि ग्रह दे उपर भी पै रहीआं ने। हुण उहदीयां किरणां ते अनेक ही ने उहदीयां किरणां ते अनेक ही ने पर जिथों वो किरणां बन रहीआं ने जिथों वो किरणां निकल रहीआं ने सूरज थोड़ा अनेक ने सूरज ते एक ही है ना। जिथे असीं बैठे हाँ इत्थे भी सूरज दीयां किरणां पै रहीआं ने कनेडा अमरीका विच भी सूरज दीयां किरणां पै रहीआं ने। हुण किरणां बहुत ने पर उन्हां जिथों किरणां आ रहीआं ने सूरज तां इक्को ही है ना उहदियां ही ने सारियां किरणां इक्को सूरज दीयां सारियां किरणां हन। इसे ने पातशाह ने कहा अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। आ जिहड़ा सारा संसार उपजया इक्को ही सूरज इक्को ही भाई परमेश्वर तो ही पैदा होया। भावें कोई मुसलमान है कोई हिंदू है कोई जैनी है कोई बोधी है पातशाह कहते ये उहदियां किरणां ही ने पर सूरज एक ही है ना परमात्मा सब उसे तो ही पैदा होए है। तो वो सारी जिहड़ा वरतांत आ ना उही गुरु नानक साहब पातशाह इस शब्द अंदर समझा रहे हैं। पातशाह कहते भावें असी सनातन मत कहते भी 6 ऋषि होए ने 6 उन्होंने ग्रंथ पैदा किए 6 उन्होंने सिद्धांत ने पर गुरु नानक साहब पातशाह कहते जुड़ना है ना तो जुड़ो उहदे नाल जिन्हें 6 ऋषियां नूं पैदा किया एक परमात्मा गुर गुर एको। इन्हां दा गुरु परमेश्वर एक ही है। गुर गुर दा की अर्थ है गुर परमेश्वर श्रेष्ठ गुरु गुरु दा गुरु कौन परमेश्वर वो पातशाह कहते एक ही है। ये तो उहदे वेस ने पाई उहदियां किरणां ने उहदे रूप ने वक्खो वखरे। वेस का की अर्थ हुंदा रूप उहदे रूप वक्खो वखरे हन पर वो परमात्मा इक्को ही है। बाबा जय घर करते कीरत होए। हे बाबा हे भाई बाबा का की अर्थ है हे भाई जिस घर दे विच करतार दी सिफत सलाह हुंदी है जय घर करते करते का की अर्थ है उस करते वाहिगुरु परमेश्वर दी जिस घर विच उस करते दी उस वाहिगुरु दी उस परमेश्वर दी वडाई होए करते कीरत होए उहदी कीर्ति हुंदी है उहदी वडियाई हुंदी है। सो कर राख वडाई तोए। पातशाह कहते ने सतगुरु पातशाह कहते सो कर राख तू भी उसे घर का ही आसरा रख। सो कर राख तू भी उसे घर का ही भरोसा रख। वडाई तोए इसे विच ही तेरी वडियाई है इसे विच ही तेरा भला है। समझो जी अर्थ जय घर करते कीरत होए जिस घर दे विच उस वाहिगुरु परमेश्वर की कीर्ति हुंदी है उहदी वडियाई हुंदी है। वो किहड़ा घर कल आपां विचार कीती सी सतसंगत रूपी घर। वो घर किहड़ा जी
सतसंगत रूपी घर ही है ना जिस घर विच करते की वडियाई हुंदी है। सतसंगत ही वो घर है ना जिथे परमेश्वर के गुणगान हुंदे ने, उहदी वडियाई हुंदी है। असीं इत्थे बैठे हाँ करते दीयां गल्लां ही ते करदे हां। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। तुसीं देखिया होना कल रौला पिया बहुत सारा, वो रागी ਸਿੰਘਾਂ पिपली साहब नाम नीलधारियां का स्थान है कोई, उत्थे वो किदां कृष्ण दीयां सिफतां बैठे गाई जांदे ने। तो क्यों विरोध हो रहा उन्हां दा भी भाई बड़ा माड़ा कर्म है? ਉਹਦਾ कारण ਇੱਕੋ ही है भी वो दरबार किसी होर दा सिफतां किसी होर दियां ने। और ये थोड़ा भी कृष्ण की सिफत करनी कोई माड़ी गल है, करते ही ने, लखां लोग करते ने। पर गल की है भी सतसंगत वो हुंदी है, सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। जे भाई कोई मुसलमान मसीत विच नमाज अदा करदा है, उत्थे गीता थोड़ा गाई जा सकती है। एक निज़म है, एक मर्यादा है, कोई रूल है। मंदिर दे विच बैठ के अल्लाह अल्लाह थोड़ा कहा जा सकता है, उत्थे राम राम ही कहना पएगा। मर्यादा बनाई हुई है एक, भावें कि अल्लाह अल्लाह कहना कोई माड़ी गल थोड़ा है, पर मंदिर विच ते राम राम ही उचारना पएगा ना, मर्यादा है उत्थों दी। इसे तरह के नाल गुरु घर की मर्यादा यह है भी इत्थे गल केवल एक परमेश्वर की हुंदी है, गल केवल इको ही परमेश्वर की हुंदी है। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, एक तो बिना दूजे की गल ही नहीं हुंदी। बस इन्नी गल है। इस करके सतगुरु पातशाह कहते ने भाई सो घर राख वडाई तोए, हे भाई उस घर दे विच सो घर राख, उसे घर दे विच ही तू अपना भरोसा रख, उसे घर दे विच ही तू अपने आप को सुरक्षित समझ। वडाई तोए यही तेरी वडियाई है, इसे विच ही तेरा भला है। विसोए चसियां घड़ियां पैरां, थिथी वारी माँ होवा। इनू माहो नहीं पढ़ना, माँ होवा दा, क्योंकि इत्थे माँ का अर्थ है महीना। माँ दिवस मूरत भले, असी माँ ही पढ़ते हैं, महीना इनू माहो नहीं पढ़ना। ये बड़ा ध्यान रखना है, महीने की गल हो रही है। तो विसोए चसियां घड़ियां पैरां गुरमुखो, ये समय दियां वक्खो वक्खरियां इकाइयां ने, वक्खरियां वक्खरियां इकाइयां। जिवें विसोए, विसोए की हुंदा है जिहड़ी असीं अख है ना, जिहड़ी अख अख की जिहड़ी पलक है, इहनूं समझो बड़े ध्यान नाल। जिहड़ा अख की एक पलक है, इहनूं असीं झपकदी है। ये जदों ये अख की पलक 15 वार झपक जाती है, जिन्ने समय दे विच ये 15 वार झपकदी है, उहनूं कहंदे एक विसवा। इत्थों समय की शुरुआत देखो, असीं कहने हैं जी समय की शुरुआत मिनटां तो हुई है, सैकेंडां तो हुई है। गुरु नानक साहब पातशाह विसोए तो करते हैं। जिहड़ी अख की आ पलक है ये झपकदी है, जदों ये अख की पलक 15 वार झपक जाती है, उहनूं कहंदे ने एक विसवा। विसोए चसियां जदों 15 विसोए हो जाते हैं, फिर उहदा एक चसा बन जाता है। ये नुकता बड़े ध्यान नाल समझो। 30 चसे बन जाते हैं तो एक पल बन जाता है, 30 चसियां का एक पल बन जाता है, तो 60 पलों की एक घड़ी बन जाती है, तो 7.5 घड़ियां का एक पैर बन जाता है। पैरां थिथी वारी माँ हुआ। 15 फिर जिहड़े हुंदे ने 8 पैरां का एक दिन रात बन जाता है। इदां ही हुंदा है, फिर दिन रात बन जाता है। फिर 15 थित्तां पत हुंदियां ने, 7 वार हुंदे ने, 12 महीने हुंदे ने, 6 रुत्तां हुंदियां ने साल दे विच। गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे देख सही उस करते पुरख अकाल ने किदां दी रचना रची है। विसोए भी ने, चस्से भी ने, पल भी हन, दिन भी हन, थित्तां भी हन, पर गुरु नानक साहब पातशाह कहंदे सूरज एको। ये जिहड़े सारे ने ना, ये जितनियां समय दियां इकाइयां ने, इहदा आधार एक सूरज है। दिन रात किवें बनते ने जी? सूरज के कारण ही बनते हैं। दिन रात जे सूरज ना होवे दिन रात नहीं बन सकते। दिन रात का कारण की है? सूरज बनता है।
दिन रात तो फिर अगे है जिहड़े वो घंटे बन जाते ने, मिनट बन जाते ने, सकेंट बन जाते ने, तिथां बन जांदियां ने, वार बन जाते ने, फिर महीने बन जाते ने। पर ये सारियां दी आरंभता तो सूरज तो होंदी है ना, सब दा सूरज है। जे सूरज ना होवे ना दिन बनना है, ना रात बननी है, ना महीने बनने ने, ना वार बनने, ना थित्तां बननियां ने, ना विसुए बनने ने, ना चस्से बनने ने, कुछ भी नहीं बनना। सब कुछ बन रहा है, उसका कारण है सूरज। सूरज एक रुत अनेक, पातशाह कहते रुत्तां अनेक ने, बहुत ने। 6 रुत्तां तो असीं आम ही कहने हैं, पर इत्थे रुत्तां दा अर्थ है ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੇ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੇ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ बहुत तरह दियाँ जिनसा रंगा दियाँ भांतां भांतां की रचना अकाल पुरख परमात्मा ने की है। पर पातशाह कहते बनाउण वाला तो केवल एको ही है। बस इन्नी गल समझ। एक एक समय की इकाई दे राही गुरु नानक साहब पातशाह सानू एक दे नाल जोड़ रहे हैं। सूरज एको रुत अनेक, भाई परमेश्वर दियां बनाईयां होईयां रुत्तां अनेक हन, पर उन्हां रुत्तां नूं बनाउण वाला सूरज केवल एक है। जिन्हों पातशाह ने कहा माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। मिट्टी तो एक ही है, मिट्टी एक ही है। इक्को मिट्टी विचों घुमियार की कुछ बना दिंदा है, घड़े भी बना दिंदा है, चप्पड़ भी बना दिंदा है, छोटे खिलौने भी बना दिंदा है, वड्डियां चीज़ां मिट्टी दियां बना दिंदा है। हुण घुमियार दे भांडे वक्खो वखरे ने, अनेक ने, पर उन्हें बनाए इक्को ही मिट्टी दे विचों है। मिट्टी थोड़ा वखरी हुंदी, इक्को ही मिट्टी विचों सब तरह के भांडे बना दिंदा है। इसे तरह वाहिगुरु परमेश्वर दियां बनाईयां रचनावां अनेक ने, पर बनाउण वाला परमेश्वर एक है, इक्को ही है घुमियार। इसी तरह के नाल सूरज एको रुत अनेक। सतगुरु पातशाह कहते भाई अनेक ही रुत्तां हन, पर सूरज एक है। ये सब पर सब जो दिख रहा है वो वख वख रूप केवल एक परमात्मा दे ही हन। नानक करते के केते वेस। हे नानक ये करतार दे किन्ने रूप हन, अनेक ही रूप हन। जिन्हों सतगुरु पातशाह बाणी वचन भी करते हैं। पातशाह कहते समुंदर वहिंदा पिया सी, जवार भाटा आया, समुंदर दियां लहरां उठियां। इक्को ही समुंदर विचों लखां लहरां उठदियां ने, उच्चियां उठदियां ने समुंदर तो, पर जदों वो लहरां खत्म हो जांदियां ने रह जांदा है केवल एक समुंदर। समुंदर विचों ही पैदा होईयां लखां लहरां। जलते उठे अनेक तरंगा, कनक भूखन किन्ने बहु रंगा। पातशाह कहते सोने के गहने किन्ने तरह तरह के होंदे ने, पर सोना तो एक ही हुंदा है ना, उहदे विचों किन्ने गहने बन जाते। बीज बीज बोए बहुत प्रकारा, कहन लगे बीज बोने हैं, इक्को ही दरख्त उत्ते किन्ने तरह के पत्ते हुंदे ने, किन्ने तरह दी किन्नियां टाहनियां हुंदियां ने, किन्ने पत्ते हुंदे ने। पर सतगुरु पातशाह कहते इक्को ही बीज तो पैदा होए हुंदा सब कुछ, बीज तो इक्को ही हुंदा ना। इस तरह के नाल ही सतगुरु पातशाह कहते भाई उस करते भी इस रचना नूं समझ गए, असी जिन्ने भी संसार उत्ते इहदा असल अर्थ की बनेगा। किन्ने ही धर्म बने हुए ने, किन्नियां ही जातां बणियां होईयां ने, किन्ने ही रूप बने हुए ने, किन्ने ही रंग बने हुए ने, ते बंदा इन्हां जात इन्हां धर्मां तो रूपां दे रंगां दे कारण वंडिया गया है। पर गुरु नानक साहब पातशाह कहते जे सच नूं समझ गए तो सब नूं बनाउण वाला परमेश्वर केवल इक्को ही है। असी भाई सारे उसे दे बनाए हुए हाँ। सूरज इक्को रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। ये सारी सृष्टि की रचना, रचना दे जीव
दिन रात जो कुछ भी बनया ये सब करते दे ही स्वरूप ਹਨ। सतगुरु पातशाह कृपा करन, भुल्लां चुक्कां दी खिमा, फतेह बुलाओ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੇ ਮਹੱਲਾ 3।